Yes, good afternoon, dear students. Good afternoon to all of you. Myself, Vijay Singh, and we are discussing chapter number 13 from your science book. The name of the chapter, all of you know that the name of the chapter is sound. And in this chapter, till now, we have discussed that sound can travel in all the mediums. Sound need a medium to travel. Without a medium, sound cannot travel. And the speed of the sound in different medium is different. The speed of the sound in the solid medium is very fast. It can travel very fastly, very quickly in the solid medium. In the liquid medium, its speed is moderate, and in the gaseous medium, the speed of the sound is slowest. And in the vacuum, since there are no medium in the vacuum, no particles in the vacuum, that's why sound cannot travel into the vacuum. In a space the sound cannot travel. These topics we have discussed. Now in today's session, we will try to discuss a very important topic, that how the human beings able to hear the sound, है ना? How we hear the sound. हम किस तरह से sound को जो है hear कर पाते हैं और सुन पाते हैं sound. Yes, students, all of you can look in your book also, and all of you can see the diagram in the PDF also ना. आपके books, आपके जो screen पे जो PDF show की गई है उसमें diagram आपको दिख रहा होगा. A diagram of an ear is shown, है ना? So if you will see the diagram of the ear, तो ear में जो सबसे बाहर वाला जो ये structure जिसको मैं अभी outline कर रहा हूँ ना, this part of the ear is known as the outer ear, and the shape of this outer ear ना, ये कौन सा part कहलाता है बेटा? This part is known as outer ear. This portion is known as middle ear, and this portion is known as inner ear. तो जो outer ear है, outer ear का shape देखो आप बेटा ना, outer ear का shape देखोगे तो एक funnel के जैसा shape है. It's the shape of the outer ear is just like funnel. Why the shape of the ear is just like funnel? To take the vibrations inside the ear, है ना? Ear के inner वाले portions में vibrations को भेजने का काम है ना. Vibrations जो आसपास से जितने भी vibrations आ रही है, उन सब vibrations को इकट्ठा करना, उन सब vibrations को इकट्ठा करके ear के अंदर send करने का जो काम है, that is done by the outer ear, and this part of the ear is also known as ear pinna. This part of the ear is also known as ear pinna. Ear pinna. This part is also known as ear pinna. तो ध्यान में रखेंगे, जो ear pinna होता है, जो outer most part होता है ear का, उसका main काम क्या होता है? उसके जितने भी वाइब्रेशंस आ रही हैं आसपास से, उन सबको ग्रैस्प करना, इकट्ठा करना और अंदर वाले पोर्शन में भेजना. ठीक है बेटा? अब बाहर से वाइब्रेशंस आ रही है, ठीक है? नाउ आई एम शोइंग यू द वाइब्रेशंस ना. थोड़ा सा जो है इमेज को एक बार इनलार्ज कर लेते हैं. जस्ट यस, ऑल ऑफ यू सी, अगर आप देखेंगे तो वाइब्रेशंस इस तरह से आ रही है बेटा, और आपको ये येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको मैं थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर देता हूं ना. You can see this yellow portion of the ear, है ना? थोड़ा जिसको मैं हाईलाइट किया अभी. This yellow portion of the ear is known as eardrum, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, कान का पर्दा, है ना? तो कान का पर्दा इज बेसिकली द ईयर ड्रम. ये एक मेम्ब्रेन है जो एक बहुत ही स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है. स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जैसे कि अगर मैं आपको स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन थोड़ा सा समझाना चाहूं तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा है ये एक्टिविटी. कैन यू सी द एक्टिविटी 13.10? एक्टिविटी 13.10 में आप देखो, एक कैन है ना, एक टिन कैन, एक कैन लिया हुआ है, और कैन के ऊपर जो रबर बैंड, जो बैलून होता है, बैलून है ना, बैलून को क्या किया है, स्ट्रेच करके एकदम जो है एकदम टाइटली उसको स्ट्रेच करके बांध दिया है. तो जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है ना, उसी के जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारे ईयर ड्रम्स का. हमारे जो कान का पर्दा होता है ना, जो ईयर ड्रम होता है, उसका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है. तो लेट्स सी कि जब वाइब्रेशंस जब ट्रेवल कर रही है ना, जो बाहर से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, सारी की सारी वाइब्रेशंस जो है ईयर पिना ने इकट्ठा करी है और अंदर की तरफ सेंड करी है.
अब जैसे ही ये वाइब्रेशंस अंदर जाएंगी और हमारे ईयर पिना से, यानी कि जो ईयर जो ड्रम है, ईयर ड्रम से जब जैसे ही टकराएंगी वाइब्रेशंस, तो ये जो हमारा ईयर ड्रम है, इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, it will start vibrating. Now due to the vibrations, these vibrations, जैसे ये ईयर ड्रम है ना, नीचे वाले डायग्राम में देखो आप, नीचे वाले डायग्राम जिसको मैंने हाईलाइट किया है, दिस इज द ईयर ड्रम, इसको मार्क भी किया हुआ, ईयर ड्रम है ना, ईयर ड्रम और कान का पर्दा। तो ये वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा। अब वाइब्रेशंस ये ट्रांसफर करेगा आगे, इन बोन्स में ट्रांसफर करेगा। देयर आर 3 बोन्स विच आर प्रेजेंट इन द ईयर, है ना। और ये 3 बोन्स जो होती हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, जो वाइब्रेशंस आ रही है उनको थोड़ा सा लिफ्ट कर देती है ना, उनके एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा लिफ्ट कर देती है, जिससे वाइब्रेशंस इजीली अंदर ट्रेवल कर पाती हैं। और ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन ऑफ द ईयर इज नोन एज मिडल ईयर, दिस पोर्शन ऑफ द ईयर इज नोन एज मिडल ईयर। ईयर ड्रम से लेकर ये जो बोन्स बनी हुई है ना, ईयर ड्रम से लेकर जो बोन्स है, वहां से लेकर ये वाला जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दिस पोर्शन ऑफ द ईयर इज नोन एज मिडल ईयर। तो ये मिडल ईयर में साउंड का एम्प्लीफिकेशन हो गया। अब ये साउंड आगे जाएंगी, इनर ईयर में जाएंगी, और इनर ईयर में क्या किया जाएगा, इन वाइब्रेशंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, दीज वाइब्रेशंस विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यस डियर स्टूडेंट्स, इन द इनर ईयर में क्या करेंगे, ये जो वाइब्रेशंस है ना, इन वाइब्रेशंस को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ब्रेन में सेंड किया जाता है, और फिर हमें हमारा ब्रेन जो है ये कंक्लूड करता है कि जो वाइब्रेशंस हैं, वो जो साउंड है किस तरीके के साउंड है, और फिर हम साउंड को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे जो हेयरिंग का जो प्रोसेस है ना, हमारे जो सुनने का जो प्रोसेस है, हेयरिंग का जो प्रोसेस है, वो किस तरीके से होता है। ऑल ऑफ यू सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द वाइब्रेशंस आर कलेक्टेड ना, वाइब्रेशंस आर कलेक्टेड बाय द ईयर पिना। दिस पोर्शन जो सबसे जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन ऑफ द ईयर इज नोन एज ईयर पिना और आउटर ईयर। इसका काम क्या होता है, जो बाहर से जो वाइब्रेशंस आ रही है उनको कलेक्ट करने का काम है। नाउ जो वाइब्रेशंस कलेक्ट हो गई है, उन वाइब्रेशंस को अंदर सेंड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मिडल ईयर। तो ये वाइब्रेशन जो है अंदर सेंड होंगी मिडल ईयर में, और जाके ये वाइब्रेशंस कहाँ टकराएंगी, है ना, दीज वाइब्रेशंस विल कोलाइड विद ईयर ड्रम। जो आपको येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन ऑफ द ईयर इज नोन एज ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या है, बेसिकली जैसे आप रबर की किसी शीट को बहुत स्ट्रेच कर लें, रबर के जैसे बैलून है, रबर के बैलून को काफी स्ट्रेच कर लें, तो वैसी एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर जो है वो ईयर ड्रम की होती है, जिसको हम नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में कान का पर्दा भी बोलते हैं। अब ये बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, एकदम स्ट्रेच्ड है। तो जैसे इससे वाइब्रेशंस टकराती हैं, तो ये भी वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है ना, ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये अपनी वाइब्रेशंस को अंदर वाले पोर्शंस, जैसे कि मैं इस नीचे वाले डायग्राम में शो कर रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा पेन को मैं ये थोड़ा थिक कर लेता हूं। यस, ऑल ऑफ यू सी, ये जो वाइब्रेशंस है अंदर वाले पोर्शंस में भेजी जाती हैं। ये जो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द बोन्स विच आर प्रेजेंट इन द ईयर। हमारे ईयर में जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, एक ना, इन 1 ईयर 3 बोन्स आर प्रेजेंट, है ना, इन 1 ईयर 3 बोन्स आर प्रेजेंट, दे हैव डिफरेंट नेम्स। और वैसे तो इनका जो नेम आपकी बुक्स में दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक होता है मेलिस, एक इंसिपस और एक स्टेपिस, है ना। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोन व्हिच आर प्रेजेंट inside the ear, and the main function of these bones is to amplify the vibrations। जो वाइब्रेशंस बाहर से आएंगे उनको थोड़ा सा लिफ्ट कर देता है, अपलिफ्ट कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है। Now those vibrations from the bones will travel into the inner ear, inner ear में ट्रेवल करेंगी, और inner ear में उन vibrations को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करेंगे ईयर से होते हुए। कहाँ ट्रेवल करेंगे बच्चों, ईयर के बाद में वाइब्रेशंस जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कहाँ ट्रेवल करेंगे, हमारे ब्रेन में ट्रेवल करते हैं, और हमारे ब्रेन में उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पढ़ा जाता है, उनसे इंस्ट्रक्शंस ली जाती है, और तब हमें पता लगता है कि हमें कौन सी साउंड सुनाई दे रही है, और जो है ये किसकी साउंड है
है ना, मम्मी की आवाज है या पापा की आवाज है या सर की आवाज है या सिस्टर की आवाज है या फिर किसी और चीज की आवाज है, आपको कैसे पता लग पाता है ये चीजें? ये आपको ब्रेन में इन चीजों का रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है। ब्रेन में इनका पर्टिकुलर सेंटर होता है जहां पे आपको ये पता लग जाता है कि ये पर्टिकुलर जो साउंड है किसके द्वारा क्रिएट की गई है। Okay, students, so this is how we hear the sound. This is the phenomena of hearing in the human beings. Let's take a quick reading of this portion. The explanation part is done. Let's see the reading of this portion. All of you see, the shape of the outer part of the ear is like a funnel. When sound enters in it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called the eardrum, है ना। तो जैसे ही सबसे आउटर पार्ट में जो फनल शेप में है उसमें वाइब्रेशंस को कलेक्ट किया, तो ये वाइब्रेशंस ट्रेवल करती है कैनाल शेप में जो अंदर इनर ईयर है, मिडल ईयर में ट्रेवल करती हैं और हमारे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ईयर ड्रम से जाके कोलाइड करती है। It performs an important function. To understand what the eardrum does, let us build a tin can model of the eardrum. There is one activity to represent how the eardrum works. हमारा जो eardrum है किस तरह से वर्क करता है उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है जिसको आप भी परफॉर्म कर सकते हैं। What you have to do, आपको क्या करना है, एक कैन लेना है ना, you have to take a can, और कैन के दोनों एंड खुले हुए होने चाहिए ना। टिन कैन जिसमें छोटा सा प्लास्टिक का कैन भी ले सकते हैं या टिन का कैन भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके दोनों एंड ओपन होने चाहिए, बोथ एंड शुड बी ओपन ना। उसके एक एंड पे आपको एकदम जो रबर का जो बैलून होता है ना, रबर के बैलून को एकदम स्ट्रेच करके उसको बांध देना है, एक एंड पे अच्छे से एकदम टाइट करके स्ट्रेच करके बांध देना है। अब ये आपके ईयर ड्रम की तरह वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? जब आपने इसके रबर बैंड से इसको एकदम टाइटली होल्ड करके बांध दिया है तो उसके सेंटर में आप क्या रखेंगे, कुछ ग्रेन्स के पार्टिकल ना, ड्राई जो ग्रेन्स होता है, ड्राई ग्रेन्स जैसे कि राइस हो सकता है या फिर वीट हो सकते हैं। वीट के कुछ सीरियल्स के कुछ जो है इसके ऊपर सम सीरियल्स और सम ग्रेन्स यू हैव टू पुट ऑन इट एंड यू हैव टू टेल योर फ्रेंड टू से हरी हरी, है ना। हरी थोड़ा सा ऐसा वर्ड है जिसमें थोड़ी वाइब्रेशंस ज्यादा है, तो दूसरे एंड से आपको दोस्त को ये कहना है कि वो दो वर्ड्स बार बार जो है थोड़ी लाउडली वर्ड्स को बोले। कौन से वर्ड्स को वो रिपीट करना है? हरी हरी, बिकॉज दीज वर्ड्स हैव सम मोर वाइब्रेशंस, है ना। तो यू विल सी दैट द ग्रेन्स विल स्टार्ट जंपिंग एट देयर पोजीशंस। जो ग्रेन्स आपने सेकंड साइड में रबर स्ट्रेच रबर जो शीट है उस पर रखे हुए हैं वो एक अपनी पोजीशन में जंप करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि वाइब्रेशंस इस तरह से हमारे ईयर में ट्रेवल करती हैं और हमारे जो ईयर में जो ईयर ड्रम होता है, जो कान का पर्दा होता है, वो इस तरह से वर्क करता है जब वाइब्रेशंस आती हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्टिविटी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द ईयर ड्रम। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द एक्टिविटी। Okay, so we will see the next topic that is also an important one, and this is the topic from which the question will be asked in the exams. Final terms में जो questions पूछे जाएंगे ना बेटा, वो इसी particular topic से पूछे जाएंगे। Amplitude क्या होता है, time period क्या होता है ना, frequency क्या होती है। These questions will definitely be asked in the exams, so all of you understand them very attentively. ध्यान से सुनेंगे, and if you don't understand them you can raise your hands and then ask your questions. Next topic is amplitude, time period and frequency. ये तीनों terms क्या है? ये तीनों की तीनों किससे related है बच्चों? These all terms are related to the vibrations. These all terms are related to the vibrations. Now we all have studied about the vibrations. क्या होती है vibrations? We have already studied. क्या होती है वाइब्रेशंस? ऑल ऑफ यू सी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देम अर्लियर आल्सो, कि वी हैव लर्नड, है ना, वी हैव लर्नड दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन।
दिस मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। अगर हम वाइब्रेशन कहें या फिर ऑसिलेटरी मोशन कहें तो दोनों लगभग सेम ही है, आपको कोई डिफरेंस नहीं समझना है। इफ यू विल से the object is oscillating or if you will say an object is vibrating, both are one and the same meaning है ना, there is no difference between them। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है और एन ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन or back and forth motion, then that type of motion is known as vibration motion or oscillation motions। Now what is frequency? क्या होता है frequency? बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजीली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगे ना बेटा, that is known as frequency। I repeat, all of you listen very attentively। क्या मतलब है? एक सेकंड में, 1 सेकंड में, एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगे ना, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू सी द डेफिनेशन आल्सो ना। डेफिनेशन क्या है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। वेरी इजी डेफिनेशन। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रहे हैं या फिर एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। सपोज कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट कर रहा है एंड इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट जो है 100 ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है। कितने ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है बेटा? 100 ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? The frequency will be 100. The frequency will be 100. So yes, students, we are discussing the frequency. I hope all of you understood the meaning of frequency. Frequency meaning is what is the number of oscillations or what is the number of vibrations completed in 1 second. एक सेकंड में कंप्लीट होने वाले वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड द यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड इज नोन एज हर्ट्ज। It is given after the name of a scientist, to give the honor to the scientist. The name of this unit, the unit दी गई है hertz. It is given after the name of the scientist to give him the honor who first time discussed about this topic, frequency बारे में बताया था। तो ये आप सभी को ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट जरूर ध्यान में रखना है। इन MCQ क्वेश्चंस और इन other questions it can be asked what is frequency and what is its unit. So this unit has to be measured, has to be keep in mind। and कैसे measure करेंगे? suppose एक question आ गया ना, एक suppose एक question है कि एक object is oscillating and it is completing 5 oscillations in 2 seconds है ना। न्यूमेरिकल कैन ऑल्सो बी डन इन दिस वे है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है और जो वाइब्रेशन के दौरान वो जो ऑसिलेशंस कर रहा है वो 5 ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है और 5 ऑसिलेशंस परफॉर्म करने में उसको 2 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। इट इज टेकिंग 2 seconds टू कंप्लीट 5 ऑसिलेशंस। Then according to you, tell me what will be the frequency of that particular object? What will be the frequency of that particular object? If an object is oscillating and it is completing 5 oscillations in how many seconds it is taking? 2 seconds। अगर 2 सेकंड में वो 5 oscillations कर रहा है तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि in 1 second how much oscillations will be done। तो what you will do? You will divide the number of oscillation by the given time। जितने भी ऑसिलेशंस हैं उसको टाइम से आप डिवाइड कर देंगे। 5 ऑसिलेशंस हैं 2 सेकंड्स में हो रहे हैं तो कितने हो जाएगा? इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी विल बी 2.5 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी विल बी 2.5 हर्ट्ज और 2.5 ऑसिलेशंस पर सेकंड। Okay, so this is how you can calculate the frequency. I hope all of you have understood the meaning of frequency properly because it is an important topic. You all must understood this properly. Now next, now देखो बेटा, next topic is you can recognize many familiar sounds without seeing the objects producing them. Yes or no? No, this is very true. आप कई सारी ऐसी आवाजें
जो जहां से प्रोड्यूस हो रही है उस सोर्स को देखे बिना भी कई सारी आवाजें पता लग जाएंगी आपको। जैसे कि यू आर गोइंग इन अ स्ट्रेट पाथ ना, बिल्कुल सीधे कहीं पे आपका जो है फेस मेरी तरफ नहीं है और मैं आपको पीछे से कॉल करता हूँ ना, आई एम कॉलिंग योर नेम, तो आपको पता लग जाएगा कि हु इज कॉलिंग यू, है ना, सर इज कॉलिंग यू और योर फादर इज कॉलिंग यू और योर मदर इज कॉलिंग यू और योर ब्रदर इज कॉलिंग यू। आपको उसकी आवाज सुनकर ही पता लग जाएगा कि कौन आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, हु इज प्रोड्यूसिंग द साउंड, विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को देखे बिना आपको पता लग जाएगा हु इज प्रोड्यूसिंग द साउंड, अ कैट इज प्रोड्यूसिंग द साउंड, अ डॉग इज प्रोड्यूसिंग द साउंड और अ एनिमल इज प्रोड्यूसिंग साउंड, एनी अदर ह्यूमन बीइंग इज प्रोड्यूसिंग। कैसे पता लग जाता है? How you able to recognize the sound without seeing the object? This is due to the loudness and the pitch of the I will say sound. जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उसके एम्पलीट्यूड और उसके फ्रीक्वेंसी के कारण हो पाता है। जितने भी देखो हमने चैप्टर की शुरुआत से हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशंस, है ना, साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशंस। जैसी वाइब्रेशंस होंगी सिमिलर वैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगी। तो अगर वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड हाई है तो साउंड भी कैसी होगी? लाउड होगी। अगर वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड लो है तो साउंड भी कैसी होगी? एकदम जो है फीबल होगी, एकदम जो है कम सुनाई देगी। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, अगर जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो साउंड कैसी होगी? एकदम श्रिल, जिसका पिच बहुत हाई होगा, बहुत तीखी साउंड प्रोड्यूस होगी, बहुत ही शार्प साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे कि छोटे बच्चों की जो आवाज होती है या फिर जो गर्ल्स की जो आवाज होती है, गर्ल्स की या फिर विमेन जो होती हैं या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो साउंड होती है, उनके अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो आवाज ये जो साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड कैसी होगी बेटा? उसका पिच हाई हो जाता है, मतलब वो तीखी आवाज प्रोड्यूस होती है। तीखी मतलब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं श्रिल, और द पिच विल बी हाई, है ना। आप ऐसे किसी के साउंड को याद करें जिसकी आवाज बहुत तीखी है या फिर बहुत ही जो है श्रिल है, जिसका पिच बहुत हाई है, तो ऐसे साउंड कब प्रोड्यूस होगी? जब वाइब्रेशंस के जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा होगी। अगर वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है, फ्रीक्वेंसी अगर उसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है ना, अगर वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इफ द एम्पलीट्यूड इज मोर देन द साउंड विल बी लाउडर। साउंड कैसी होगी? लाउड होगी। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी क्लास में किसी ऐसे एक बच्चे का ध्यान में करें या फिर ऐसे क्लासमेट का ध्यान में करें जिसकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड हो, जिसकी साउंड लाउड होगी, जिसकी आवाज लाउड होगी, उसके वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, उसके वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है। If you are producing a sound which is very loud, तो मतलब vibrations का amplitude बहुत ज्यादा है. And if you are producing a sound in which the sound is very shrill, बहुत ही तीखी आवाज है, तो उस कंडीशन में उस वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही दो इंपॉर्टेंट फीचर हैं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड की लाउडनेस बहुत ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो साउंड की श्रिलनेस या जो उसका पिच है, या उसको हम कह सकते हैं जो आवाज में जो तीखापन होता है, तीखी आवाज जो होती है, जैसे मॉस्किटोज की जो आवाज होती है ना, साउंड प्रोड्यूस बाय द मॉस्किटोज इज वेरी हाई पिच, बहुत तीखी आवाज होती है। द साउंड प्रोड्यूस बाय द गर्ल्स और साउंड प्रोड्यूस बाय द वुमेन हैव अ वेरी हाई पिच, बहुत तीखी आवाज होती है। सिमिलरली द साउंड प्रोड्यूस बाय द लायंस, है ना, जो लॉयन जो साउंड प्रोड्यूस करता है, या फिर जो मैन जो जनरली साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनकी आवाज जो है थोड़ी लाउड होती है, तो उनकी पिच लो होता है और जो है एम्पलीट्यूड क्या होगा? हाई होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। लाउडनेस और पिच को हम कल की क्लास में और ज्यादा बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज सेशन and you understand what I'm trying to explain you. I hope all of you are enjoying your online sessions. Thank you very much for joining the class.